Good morning, dear friends. Today we are going to start a new topic, public finance. Public finance is a very important chapter for the any competitive examinations. That is why we have to study it extensively. It is very interesting topic in which we study the finance of the government. In this chapter, we have to discuss the budget as well as taxation. Public finance is a much wider title which includes all these matters which are concerned with public money. What do you mean by public money? In this, we have to study the money of public. The money of government gets spends, borrows and lends, raises or prints. In this, we study how to government get spends, borrows and lends money. Public finance or financials of the government now names as public economics does not only discuss the issue that how much of the country's resources of the government should acquire for its own uses, but also discuss the efficiency which the money should be used. In the public finance, the government discuss how much of the money should acquire for its own use. But also discuss the efficiency which the money should be used. In nutshell, we can say that in the public finance, the government discuss how to collect finances, how to earn finances, and also how to and where, in which sector the finance will be invested, the finance will be allocated. मतलब दोनों बात यहाँ पे किया जाता है. अब देखेंगे यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस में श्लोक वित्त गेट्स रेफरेंस इन द एंशिएंट ट्रीटीज अर्थशास्त्र में. तो अर्थशास्त्र जो बुक लिखा गया वो कौटिल्य ने लिखा. उसमें भी ट्रेजरी की बात कही गई है, सरकार के खजाने की बात कही गई है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात कही गई है, एंड ऑडिट्स इन वेरी डिटेल्ड वे. और जो उसका आय और व्यय का जो हिसाब किताब है उसके बारे में बड़े डिटेल्स में बताया गया है. Under the finance, public finance, we study budget. This is a very interesting topic for the competitive aspirants, and from this chapter
much more questions are frequently asked in the examinations. That's why let us see what is budget. Budget is a financial statement of coming 1 year. What is budget? It is the financial statement of coming 1 year. We have already discussed the public finance. In the public finance, we have to study the incomes and expenditures. In the same manner, in budget, it is the financial statement. In the financial statement, both are mentioned: expenditure, second revenue. रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों होता है इसमें। और आने वाले 1 साल का। तो बजट के बारे में एक चीज जानना है कि बजट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द करेंट ईयर, बजट इज प्रेजेंटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द लास्ट ईयर। पहले बजट पेश होता है और फिर उस बजट को बाद में खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब सबसे पहले थोड़े से हम लोग हिस्ट्री पढ़ लें बजट के बारे में कि बजट का जो इतिहास है वो शुरुआत कहाँ से होता है। बजट के बारे में वो सब चीज़ जाने जहाँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सवाल किए जाते हैं। In 1733, the British Prime Minister Robert Walpole, ये बात 1733 की है। रॉबर्ट वॉलपोल ने he presented the first financial statement of the Parliament, यानी पहली बार एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट was introduced in the parliament by Robert Walpole in British Parliament। और जब वो इस तरह का जो वित्तीय प्रस्ताव जब रॉबर्ट वॉलपोल ने पेश किया पार्लियामेंट में, वो तो उन्हें मजाक में कहा, जादू का थैला कहा, खुल गया जादू का थैला खुल गया। बट दैट टाइम इट वाज नॉट नोन एज बजट। अभी इसका नाम बजट नहीं पड़ा, यह शब्द अभी कॉइन नहीं हुआ, यानी अभी ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल ने 1733, इट वाज द ईयर ऑफ 1733 में पेश किया। अब ये देखते हैं कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, फ्रॉम वेयर दिस टर्म वाज माइग्रेटेड, वाज डिराइव्ड। इस शब्द शुरू कहाँ से होता है देखिएगा। द टर्म बजट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच, ये फ्रेंच शब्द से लिया गया है, इसका मतलब होता है BOUGT। इनको पढ़ते हैं बूजे, बुजेट नहीं पढ़ते हैं, बॉगेट भी नहीं पढ़ते हैं, हम इसे क्या पढ़ते हैं, बूजे पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है। तो दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज बूजे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो फ्रेंच का शब्द है, इट मीन्स लेदर बैग, और इसका मतलब होता है चमड़े का थैला।
means the literal meaning of budget is leather bag out which the financial statement was brought out and presented in the parliament. अब हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में बजट जो जिस थैले में लाया जाता था और लेदर बैग में, उसी थैले से गवर्नमेंट क्या करती थी, अपना फाइनेंशियल प्रपोजल को यानी स्टेटमेंट जो होता था वो स्टेटमेंट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता था। तो बजट का लिटरल मीनिंग हो गया आपका चमड़े का थैला, लेदर बैग, और इसी लेदर बैग में द फाइनेंस मिनिस्टर keeps financial statement for the presentation in the parliament. Today this word is used to mean the annual statement in all economies around the world. आज पूरी दुनिया में बजट शब्द जो है वो यूज में है फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। किसी भी देश के एनुअल प्रेजेंटेशन, जो एनुअल बजट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो बजट के रूप में होता है। हमारे देश में भी बजट पेश किया जाता है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट्स लेवल पे भी। तो इन ऑल स्टेट्स वट एवर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड, इट इज़ नोन एज बजट। और भी दुनिया में आप जाएंगे, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, अन्य देशों में भी इसे बजट के नाम से पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखेंगे तो हमारे लिए दो तीन अभी सब क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया कि आप लोग के लिए कि बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो आने वाले एक वर्ष के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। This word, the term budget originated from, इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो होता है फ्रेंच से। इट मीन्स लेदर बैग, और ये पूरी दुनिया में बजट के नाम से पेश किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर कंट्री, जहाँ से हमारे लिए सवाल है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 112 the Constitution of India has a provision for such a document called annual financial statement to be presented in the parliament before the commencement of every new fiscal year, popular as यूनियन बजट। दो तीन बातें यहाँ पे देखना है गौर करके। तो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसा कि आप आर्टिकल में पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो उन आर्टिकल में 112 में 112 में ये जिक्र किया गया है कि एक प्रति वर्ष, एवरी ईयर, द गवर्नमेंट विल प्रेजेंट such document known as annual financial statement। मतलब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम बजट के नाम से जानते हैं, और ये किया जाएगा पार्लियामेंट में द कमेंसमेंट ऑफ एवरी न्यू फिस्कल ईयर। तो नई फिस्कल ईयर के शुरुआत में। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ जानना है कि फिस्कल ईयर क्या होता है, व्हाट इज फिस्कल ईयर। और आप यूनियन बजट, मतलब कि जो भारत सरकार का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, दैट इज नोन एज यूनियन बजट।
and the provision of union budget is mentioned in the article 112 of constitution. क्लियर है? तो आर्टिकल 112 में, संविधान के 112 आर्टिकल में ये प्रावधान है दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रेजेंट द बजट, मीन्स यूनियन बजट। गवर्नमेंट का बजट यूनियन बजट होगा, या आप सेंट्रल बजट भी कह सकते हैं, केंद्रीय बजट भी कह सकते हैं। मतलब कि केंद्रीय बजट का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। ये आप पॉलिटी के दृष्टिकोण से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इकोनॉमी के नज़र से भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। संविधान का अनुच्छेद 112। अब एक दूसरी बात यहाँ पे है, फिस्कल ईयर क्या होता है? व्हाट इज फिस्कल ईयर? फिस्कल ईयर को हम राजकोषीय वर्ष कहते हैं या वित्तीय वर्ष भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वित्तीय साल या वित्तीय वर्ष जानने जरूरी है। हम पूरी दुनिया में 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं, पर 1 जनवरी इज नॉट द फिस्कल ईयर। इन इंडिया फिस्कल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल। जो हमारे देश का दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट, जो सरकारी कामकाज है, उनका वित्तीय, उनका जो साल होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। यानी फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं, या बजटरी ईयर भी, इसी को आप कह सकते हैं, 3 नाम से जान सकते हैं। फिस्कल ईयर भी सही है, बजटरी ईयर भी आप कह सकते हैं, एंड फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। तीनों एक ही बात है। तो हमारे देश में फिस्कल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। इस पीरियड को फिस्कल ईयर कहा जाता है, और या फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, या बजटरी ईयर कहा जाता है। तो 2-3 बात आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। संविधान के अनुच्छेद 112, फिस्कल ईयर और यूनियन बजट की बात। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है इसके साथ, कि हमारे देश में या तो कोई बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, उनके फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होते हैं, एक्सेप्ट आरबीआई को छोड़ करके। रिजर्व बैंक का जो फिस्कल ईयर होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई एंड इन 30 जून। दिस इज द फिस्कल ईयर ऑफ आरबीआई। तो ये जानना जरूरी है। द सेम प्रोविजन इज देयर फॉर द स्टेट्स टू। अब देखेंगे, स्टेट के लिए भी एक बजट का प्रावधान है, क्योंकि हर स्टेट भी अपने को बजट पेश करेगा खर्च के लिए, आय के लिए, व्यय के लिए। तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 202 में ये जिक्र है, प्रोविजन है दैट स्टेट शुड प्रेजेंट द बजट, स्टेट बजट। तो हर स्टेट अपना अपना बजट हर साल पेश करता है, सेंटर भी करता है, दुनिया के अन्य देश भी करता है। अन्य देश की बात हमारे लिए अब इस महीने में इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना कि हमारे, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो फैक्ट्स हैं उनको जानना है। तो संविधान के 112 और 202 जानना है। मतलब कि यूनियन बजट हो गया किसमें, तो 112 में, और स्टेट बजट हो गया 202 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। वी विल डिस्कस ऑल फैक्ट्स एंड फिगर्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक।
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या बताया जाता है? इन दिस receipts and expenditure of the government is shown. Receipts and expenditure, खर्च और आय, इट मीन्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। अब कितना गवर्नमेंट खर्च करी साल में? 365 दिन में गवर्नमेंट का पूरा टोटल खर्च कितना हुआ बहुत सारे सेक्टर पे, और बहुत सारे जगहों से सरकार को कितना फायदा हुआ, आया इनकम, फायदा नहीं इनकम कितना आया। द रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट आर शोन अंडर 3 पार्ट्स इन विच गवर्नमेंट काउंट्स आर केप्ट। अकाउंट्स आर, काउंट नहीं अकाउंट्स बोलेंगे यहाँ पे, ACCOUNTS। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, थोड़ा ध्यान देंगे। अकाउंट्स है यहाँ पे, हो सकता है कहीं पे मिस प्रिंटिंग हो तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। काउंट्स नहीं बोलेंगे, अकाउंट्स बोलेंगे। तो जो भी रिसीट और डिसबर्समेंट है वो 3 पार्ट्स में सरकार के अकाउंट्स में दिखाया जाता है, या मतलब कि गवर्नमेंट के पास 3 प्रकार के चीज़ें हैं, फंड्स हैं, जिससे इस सब को चीज़ को दिखाया जाता है। फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड, सेकेंड कॉन्टीजेंसी फंड, और थर्ड है पब्लिक अकाउंट। कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। नेक्स्ट देखेंगे तो ये 3 गवर्नमेंट का फंड है। Means there is very important question frequently asked, that how many funds of the government? The government has 3 funds. Consolidated fund, contingency fund and public accounts। 3 प्रकार के फंड होते हैं सरकार के पास। अब देखिएगा ये फंड क्या है। फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड, इसे हिंदी में कहा जाता है संचित निधि या समेकित निधि। क्या कहा जाता है? समेकित निधि। 2 तरह का एक फंड, इसका 2 नाम है, 2 तरह का नाम है, संचित और समेकित निधि। कंसोलिडेट का मतलब सारे। इस द प्रोविजन ऑफ दिस फंड इज मेंशन इन आर्टिकल 266(1) में। 266 में संविधान के आर्टिकल 266(1) में ये बताया गया है, गौर करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, कि इट इज मेड अप ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सरकार के जितने भी रेवेन्यू के सोर्स हैं। अब क्या है रेवेन्यू के बारे में हम जिक्र करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन पहले ये जानना है कि रेवेन्यू होता क्या है। रेवेन्यू जो सरकार को इनकम में आता है उसे रेवेन्यू कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट्स इनकम इज कॉल्ड रेवेन्यू। क्लियर हो गया? तो कंसोलिडेटेड फंड इज मेड अप ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, लोन्स रेज बाय इट, और जो लोन्स इसके द्वारा आता है, सरकार लोन लेती है, एंड ऑल्सो इट्स रिसीट्स फ्रॉम रिकवर ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय इट। तो सरकार गवर्नमेंट को रेवेन्यू से जो आया वो आया,
सरकारी इनकम, गवर्नमेंट लोन लेती भी है, अन्य सेक्टर से, अन्य क्षेत्रों से लोन लेती है, एंड गवर्नमेंट लोन देती है उससे भी उसे इंटरेस्ट के रूप में रिकवरी होता है। यानी सरकार किसी को लोन दिया और किसी से लोन लिया, तो लिया वो भी इस इनकम में दिखाया जाता है, और किसी को दिया और उससे जो रिकवरी होता है उन सब से बनता है कंसोलिडेटेड फंड बनता है। मोटे तौर पे आप कंसोलिडेटेड फंड में ये कह सकते हैं कि जितने भी सारे सोर्सेज हैं, थ्रू ऑल दी सोर्सेज whatever the amount is collected by the government, whatever size, whatever amount जो सरकार कलेक्ट करती है, from which consolidated fund is made, उन सभी इनकम से सरकार का कंसोलिडेटेड फंड बनता है, मतलब संचित निधि का निर्माण होता है। तो संचित निधि का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें है इसी निधि से तो देखेंगे यहां पे पहले तो कि हमने बताया यहां कि सरकार के रेवेन्यू रिसीट में नेक्स्ट चर्चा करेंगे। रेवेन्यू के तहत सरकार के पास जो इनकम आता है वो टैक्सेशन से आता है। बहुत सारे टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कंपनियां, फैक्ट्री, अन्य पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। इन पब्लिक सेक्टर यूनिट से इनकम गवर्नमेंट को आता है। डिसइन्वेस्टमेंट करके भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आता है जिनके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। और आप देखेंगे क्या कि इस फंड से नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट द कंसेंट ऑफ, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। That's why the budget is presented everywhere year। तो ये कहा जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड तो बन गया, लेकिन इस कंसोलिडेटेड फंड से एक भी पैसा सरकार खर्च नहीं कर सकती है बिना पार्लियामेंट के कंसेंट से। क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज दिस मनी इज द पब्लिक फाइनेंस एंड विदाउट द consent of the public house means पार्लियामेंट, सरकार इससे पैसा खर्च नहीं कर सकती। तो ऐसे में पार्लियामेंट से कंसेंट लेना जरूरी होता है। गवर्नमेंट टेक्स अप्रूवल, गवर्नमेंट प्रेजेंट बजट एवरी ईयर, मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी होता है। सरकार पार्लियामेंट में बजट पेश करेगी, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट खर्च करने के लायक होती है। तो ये आपका हो गया कंसोलिडेटेड फंड में। इसके बाद और भी चीजें हैं जो ध्यान देना है आप लोग को। कुछ जो सैलरी और अलाउंसेस हैं, जो कुछ संवैधानिक पद हैं, प्रधान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल्स हैं हमारे देश में, उनकी सैलरी
इसी फंड से जाती है, कंसोलिडेटेड फंड से। जैसे प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का जो भी सैलरी अलाउंसेस होगा, सवाल आता है कि राष्ट्रपति का सैलरी किस फंड से दिया जाता है, तो कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। स्पीकर का, लोकसभा का स्पीकर का, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो इन सभी का सैलरी और अलाउंसेस आर गिवन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। लेकिन बाकी खर्चे कंसोलिडेटेड फंड से दिया नहीं जाता, बल्कि उससे देने के लिए द गवर्नमेंट हैज टू टेक अप्रूवल, कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। व्हेन पार्लियामेंट अप्रूव्स, द गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। सेकेंड है कॉन्टीजेंसी फंड। गवर्नमेंट का दूसरा सेकेंड फंड क्या है? कॉन्टीजेंसी फंड। इस फंड का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 267 में द प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंसी फंड was added in 267 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 में जोड़ा गया था। तो 266 में कंसोलिडेटेड फंड का जिक्र है। अभी तक 2-3 हम लोग यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी देख लिए, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है 112। इस आर्टिकल में यूनियन बजट का जिक्र किया गया है। सारे एग्जाम में पूछा जाता है। केंद्रीय बजट की व्याख्या की जो व्यवस्था है वो किस में किया गया है। स्टेट बजट की चर्चा 202 में किया गया है। कंसोलिडेटेड फंड, जिस फंड से मोटे तौर पे और भी इसको एक्सटेंसिवली कॉन्सेप्ट बना लेना है कि वट एवर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर मनी कम्स टू द गवर्नमेंट, किसी भी सोर्स से, जितने भी सरकार के सोर्सेज हैं, हम सोर्सेज का जिक्र भी यहाँ पे कर लिए और भी आगे जिक्र करेंगे बेहतर तरीके से। पहले टू द पॉइंट जाने। तो गवर्नमेंट के जितने भी सोर्सेज हैं, उन सारे सोर्सेज से पैसा, एक एक पैसा जो आता है वो एक कंसोलिडेटेड फंड का निर्माण होता है। अब जिससे हम इसको थोड़ा और इजी वे में क्वालिफाई कर ले। सपोज मान लो कि इन योर फैमिली देयर आर मेनी मेंबर्स, 20 members, 15 members. Among them 4 are working members. 4 members are working. They are doing jobs or other business or agriculture. Family is joint. तो डिफरेंट लोगों का इनकम होगा। हो सकता है कुछ मकान के किराए से भी आए, कुछ खेती से आए, कुछ गाय बकरी भैंस नौकरी चाकरी सबसे आए। अलग अलग सोर्सेज से आपके घर में एक फैमिली में कुल इनकम आता है साल का, मतलब महीने का, अगर पहले जोड़ो महीने का 5 लाख यानी साल का 60 लाख रुपया आ रहा है इनकम। तो महीने का 5 लाख है, ये कंसोलिडेटेड इनकम है। इससे बना घर का कंसोलिडेटेड फंड। कौन सा फंड निर्माण हुआ? कंसोलिडेटेड फंड। और साल का लगभग 12/60 यानी 60 लाख इनकम आपका हो गया। तो ये इस परिवार का, फैमिली का एक कंसोलिडेटेड इनकम है, इंटीग्रेटेड इनकम है। इसको इंटीग्रेटेड कहो या बजट के फाइनेंस के मामले में आप कंसोलिडेटेड ही कहिए तो अच्छा है। अब अगर इस परिवार में कोई एक फैमिली में हेड है और एक परिवार जॉइंट चल रहा है, तो इस परिवार से में किसी भी खर्च के लिए कोई एक मालिक है जो कमा करके सब लोग एक
हेड को दे रहा है और ज्वाइंट फैमिली है, तो ऐसे में कोई भी खर्च के लिए एक कंसेंट लेना पड़ सकता है कि भाई क्या खर्च किया जाना चाहिए। तो जो भी सोर्स से आया, गाय से आया, बकरी से आया, मुर्गी से आया, नौकरी से आया, रेंट से आया, all incomes through different sources makes integrated account or consolidated account। इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग किस्म के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं लोग, और इन सब से सरकार के पास जो फंड का निर्माण होता है वो क्या हो गया, वो कंसोलिडेटेड फंड बना। तो एक फैमिली का कंसेंट लेना वहाँ जरूरी है, क्योंकि इनकम तो सारे लोग का मिलकर के किया हुआ है, और डेवलपमेंट के लिए हो, खाने पीने के लिए हो, ये सब सारी चीज़ हम लोग डील करें। बस एक परिवार को के बारे में बात करना और देश के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो इस कंसोलिडेटेड फंड से हम चाहे घर में कोई बच्चे 2-3 पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बजट बनाया जाता है, एक साल का बजट बनाया जाता है, उससे हर महीने का बजट भी बनाया जाता है। सरकारी बजट तो साल का बनता है, घर का बजट हर महीने का बनता है, कितना आटा, कितना दाल, कितना चावल लेना है। तो सारे बजट जो बनाते हैं, और पैसा कहाँ से आता है, कंसोलिडेटेड फंड से आता है। तो ठीक उसी तरह से हमारे देश में भी पैसा तो बनता कंसोलिडेटेड फंड से, तो उस फंड से खर्च करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। और हमने ये भी बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का वेतन उससे दिया जाता है। अब कंटिजेंसी फंड में क्या है, इसको कहते हैं आकस्मिक निधि। इट इज एन इम्प्रेस्ट हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट बाय अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अर्जेंट एक्सपेंडिचर। पार्लियामेंट इसको भी अप्रूव करेगा, लेकिन फर्क है। तो हो सकता है कि कभी पूछ दे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड में इस आकस्मिक निधि देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, कि कभी भी एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट फाइनेंस का हो, तो चूंकि बजट में हम एक्सीडेंटल रिक्वायरमेंट्स तो मेंशन नहीं होता है। बजट में तो जो खर्च करने की बात कही जाती है कि हम यहाँ पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, हेल्थ पे खर्च किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए किया जाएगा, सारे अलॉटेड रहते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त एडिशनल भी कुछ खर्च होते हैं, दे आर नॉट, दे कैनॉट बी एस्टिमेटेड बिकॉज दैट एक्सपेंडिचर विल बी एक्सीडेंटल। हु नोज फॉर विच पर्पस मनी विल बी रिक्वायर्ड। तो एक्सीडेंटल खर्च को तो किसी को पता नहीं, पर इसलिए उनके लिए बजट में एलोकेशन नहीं होता है। लेकिन उसी फंड से एक फंड नया डाइवर्ट करके बनाया गया है, कंटिजेंसी फंड। देश हैं, दिक्कतें होंगी, सुनामी आ सकता है, फ्लड आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी ट्रेजेडी हो सकता है किसी भी देश में। आपके देश में भी होगा, बहुत बार हुआ है। तो फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सीडेंटल, अगर किसी एक्सीडेंटल खर्च को पूरा करने के लिए अगर रिक्वायरमेंट आए, पैसा की जरूरत हो, तो देयर इज अ प्रोविजन, एक प्रोविजन है कि हमें कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकालना। उसके लिए एक फंड ऑलरेडी बना दिया गया है, जिसका मालिक मतलब कि जिसका कस्टडियन भारत के राष्ट्रपति को बनाया गया है, प्रेसिडेंट को बनाया गया है। ये प्रश्न है कि कंटिजेंसी फंड जो होता है किसके अंदर में होता है, उसका एक मालिक या आप कह सकते हैं कस्टडियन बनाया गया है, वो किसको बनाया गया है, तो ये भारत के राष्ट्रपति को बनाया गया है। और तत्काल इंस्टेंट जो खर्च होता है वो खर्च इसी कंटिजेंसी फंड से निकाला जाता है, फ्लड टैकल करने के लिए या किसी कंटिजेंसी खर्च के लिए, एक्सीडेंटल खर्च के लिए। तो इससे खर्च निकालने के लिए
प्रेसिडेंट की अप्रूवल की ज़रूरत है, प्रेसिडेंट ओके कर देगा, खर्च निकाल लेगा, सरकार उससे तत्काल प्रॉब्लम से टैकल कर लेगा। इसके इस फंड में फिलहाल अभी 500 करोड़ रुपीस का ये फंड है, 500 करोड़ रुपया का। इसकी ज़रूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता। अगर मान लो कि 1 साल तक कहीं कोई इस तरह का खर्च की ज़रूरत नहीं हुआ तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर नहीं भी खर्च होगा, पर है तो ज़रूरत तो खर्च होगा, क्योंकि यहाँ वाले में कॉन्टीजेंसी फंड में ये हमने लिखा है, देखा है आपको कि कोई भी अमाउंट बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के निकल नहीं सकता है, तो टाइम लगेगा। तो तत्काल खर्च के लिए क्या करेंगे, इस फंड से पैसा निकाल के तत्काल खर्च कर लिया जाता है कॉन्टीजेंसी फंड में, और एक लिमिट के बाद, एक टाइम के बाद फिर पार्लियामेंट से इसको भी अनुमोदन कर लिया जाता है। यानी पार्लियामेंट में बता दिया जाता है कि फॉर दिस पर्पस वी हैव स्पेंड देयर 2 करोड़ 3 करोड़ 400 करोड़ 300 करोड़ 200 करोड़ हमने वहाँ पे खर्चा कर लिया है, तो पार्लियामेंट इसको भी क्या करेगा, अप्रूवल करेगा। लेकिन हाँ, दोनों में अंतर ये है कि फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड सरकार पहले उससे बजट पास करा लेती है, अप्रूवल पार्लियामेंट से ले लेता है, इसमें खर्च करने के बाद अप्रूवल लिया जाता है। तो ये कॉन्टीजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड में अंतर है। मतलब कंसोलिडेटेड फंड से एक छोटा सा चंक एक कंटीजेंसी फंड के रूप में रखा गया है फॉर द इमरजेंसी पर्पस के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखेंगे हम लोग तीसरा अकाउंट क्या है। ये है पब्लिक अकाउंट्स। पब्लिक अकाउंट है, इसको कहा जाता है लोक खाता। पब्लिक अकाउंट को क्या कहा जाता है, लोक खाता, जनता का खाता। ये है पब्लिक अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच मनी रिसीव्ड थ्रू ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन, अदर डिपॉजिट्स एटसेट्रा। क्लियर है? तो एक सिंपल तरीके से आप समझ लो ऐसे कि इस खाते में लोगों की जो प्रोविडेंट फंड के पैसे जमा होते हैं या जो सेविंग अकाउंट के रूप में जमा होते हैं या बैंक में जो जमाएं आम आदमी के लिए है, आम आदमी का है, चाहे वो फिक्स्ड हो या जो भी हो, या इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो जमा है, तो उन जमाओं को, उन राशि को, उन पैसे को, उनको गवर्नमेंट अपने पब्लिक अकाउंट के रूप में मानती है। यानी टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट यहां से भी पैसा उधार ले सकती है पब्लिक अकाउंट से। क्लियर है? अब तीनों अकाउंट के बारे में आप समझ जाएं, क्लियर हो जाएगा। इस अकाउंट से पैसा गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट का होता नहीं है, ये टैक्स से आया हुआ पैसा नहीं है। ये तो वो पैसा है जो जनता ने अपनी इनकम का कुछ भाग बॉन्ड में खरीद करके रखा हो, इन्वेस्ट किया, सिक्योरिटी में खरीदा हो या बैंक में डिपॉजिट किया हो, सेविंग या फिक्स डिपॉजिट के रूप में रखा हो। तो इन डिपॉजिट्स को, इन पैसे को गवर्नमेंट एक तरह से यूज करती है, अपनी नीड्स को फुलफिल करता है। इससे सिर्फ यही कर सकता है, इसको अपना धन नहीं मान सकता, बिकॉज दिस इज द डिपॉजिट्स ऑफ द इंडिविजुअल। दिस इज नॉट अर्नड बाई इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेशन। ना हमको इससे टैक्स करके आया है, सरकारी धन बिल्कुल नहीं है। ये किसका है? ये धन जो है, ये पैसा है, वो पब्लिक का है, आम पब्लिक का है, मेरा है, आपका है या अन्य लोगों का है, उसमें उसी का अधिकार है। पर हम कस्टडियन के रूप में हमारे पास है, बैंकों के पास जमा है,
तो सच मनी इज केप्ट इन द पब्लिक अकाउंट एंड इज कनेक्टेड डिस्बर्समेंट आर आल्सो मेड फ्रॉम। और एक टाइम के बाद क्या होता है कि इनसे एक टाइम के बाद यह पैसा जनता को रिफंड करना पड़ता, लौटाना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। इसलिए पैसा आपका है ही नहीं। जब आपका पैसा है ही नहीं, मतलब देश का पैसा है ही नहीं, मतलब सरकारी धन है ही नहीं, तो फिर इससे निकालने के लिए मीन्स फॉर द withdrawal from this account the consent of parliament is not mandatory, because this is not the assets of, not the amount of the government. This amount is owned by the individual public. That is why हाँ सरकार उससे यूज़ कर सकती है, लेकिन जिस दिन उनके जमा की मियाद पूरी होगी तो लौटाना पड़ेगा सरकार को, जनता को। अब देखेंगे यहाँ पे पब्लिक अकाउंट फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। क्लियर है? यहाँ नोट में देखना है, पब्लिक अकाउंट में जो फंड है वो सरकार का फंड नहीं है, सरकार का है ही नहीं, एंड हैव टू बी पेड बैक समटाइम्स और अदर ऑफ द पर्सन्स एंड अथॉरिटीज, एंड आफ्टर सम टाइम, after the completion of tenure and period, the government has to return it who deposited them. Means the depositor will withdraw money from that and the government will provide them. That is why, तो ये तो बहुत बड़ा क्लियर हो गया, बड़ा स्पष्ट हो गया। यूजली आप समझ गए होंगे कि this fund is not created by government, this fund is not owned by the government, this fund is not owned by receiving taxation, this fund is owned by the private individuals. It means the real owner of, the real जो मालिक होता है of this money is general public, individual public, पीपल का उनका है। तो निश्चित रूप से उनके एक मैच्योरिटी होने के बाद आपको देना है, तो आपको देना है और आपने सिर्फ खर्च किया, जनता का पैसा है नहीं, इसलिए पार्लियामेंट्री कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे दो सवाल इंपॉर्टेंट है। Should the government take approval of the parliament to withdraw money from the public account? No, the government has not to take approval from the parliament to withdraw from to spend from public account, because public account is not the account and amount of the government, but is the account and amount of the common people or private individuals. On the other hand, the government has to take consent from the public account, from the consolidated fund and the contingency fund, because these two funds are created by the government and owned by the government also. वो सरकार का खजाना है, सरकार के खजाने से निकालने के लिए, गवर्नमेंट के खजाने से निकालने के लिए गवर्नमेंट यानी हमारा जो पार्लियामेंट है उसकी कंसेंट की ज़रूरत होता है। क्लियर हो गया? एम आई राइट? अब नेक्स्ट देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। और ऐसे हमको आगे बढ़ना है। फिर नाउ सी रिवाइज्ड एस्टिमेट। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है? तो it is basically a current estimate or the provisional estimate. It shows the contemporary situation. It is an interim data.
मान लो कि हर साल का बजट बनता है, हर साल का बजट बनता है और लगता है कि बजट में कुछ कमी ज़्यादा हो तो फिर से एक एस्टिमेशन होता है जिसको हम कहते हैं रिवाइज एस्टिमेट। मीन्स करेंट एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है। क्विक एस्टिमेट इज ए काइंड ऑफ रिवाइज एस्टिमेट। यह भी क्या एक रिवाइज एस्टिमेट है विच शोज the latest situation and is useful for the process of going for future projection for some sectors or sub sectors। मतलब ये एक इंटरिम डेटा होता है, यानी एकदम लेटेस्ट किया जाता है। एडवांस एस्टिमेट में भी क्या है, एक प्रकार का क्विक एस्टिमेट ही होता है, बट डन अहेड ऑफ फाइनल स्टेज व्हेन डेटा शुड हैव बीन कलेक्टेड, इट इज एन इंटरिम डेटा। तो ये अलग अलग तरह का आपका एस्टिमेशन होता है, जो क्विक एस्टिमेशन है, एडवांस एस्टिमेशन है या रिवाइज एस्टिमेशन है। तो आप सुनते होंगे बीच बीच में कि रिवीजन हुआ बीच में कि कितना हमारा टैक्स से आ रहा है सरकार का या कितना खर्च होगा, इस तरह का जो आंकड़े आते रहते हैं। मेनली आपको देखना यहाँ पे ये है कि डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या है। हाँ, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली वी हैव टू स्टडी। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, और नॉन डेवलपमेंट का मतलब होता है गैर विकास, जिससे विकास से अलग हट करके। देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड इनटू टू सेगमेंट। द फर्स्ट इज डेवलपमेंट, द अदर इज नॉन डेवलपमेंटल। एक डेवलपमेंटल है और दूसरा नॉन डेवलपमेंटल है। डेवलपमेंटल का मतलब होता है जो विकास से है, और नॉन डेवलपमेंट का मतलब जो विकास से नहीं है। मतलब ये इस वर्ड में ही आपका मीनिंग है, लेकिन फिर भी ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल में। तो एक को करने से एक ऐसा खर्च होता है जिससे कि हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट होता है, कुछ नई सेटअप तैयार होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, और दूसरा सिर्फ है कि मेंटेनेंस हमने किया, कोई नया चीज़ नहीं। अब देखेंगे यहाँ पे all the expenditure of a productive nature। प्रोडक्टिव नेचर का मतलब होता है, सपोज अगर आप एक इंडिविजुअल के रूप में भी देख लें कि अगर आप कोई खेती या कोई पशुपालन या लाइव स्टॉक का कोई कारोबार करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर प्रोडक्शन होगा, कोई नया चीज़ का निर्माण होगा, प्रोडक्शन होगा। पर कुछ ऐसे चीज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। अब वो क्या होगा देखते हैं। तो ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्टिव नेचर आर डेवलपमेंटल। ये डेवलपमेंटल है, जैसे फैक्ट्री, डैम्स बन रहे हैं आपके यहाँ, ब्रिजेस, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, दीज आर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। फैक्ट्रीज बन रहे हैं, फैक्ट्रीज तो नो डाउट प्रोडक्शन के लिए होगा, द कमिंग फ्यूचर देयर विल बी प्रोडक्शन। डैम्स इज ऑल्सो समथिंग न्यू प्रोड्यूस्ड, डैम बन रहे हैं, ब्रिज भी कुछ बन रहा है तो वो डेवलपमेंट में हमारे लिए काम करेगा, पोर्ट्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ क्या होता है ना, दे विल बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। तो वो ये जिसको हम कहते हैं विकास, डेवलपमेंट। तो ये जो खर्च होता है वो डेवलपमेंटल नेचर का होता है, इसलिए प्रोडक्टिव नेचर है इसका। तो आप
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं इसको, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। द सेकेंड इज द एक्सपेंडिचर विच आर कंजम्पटिव काइंड, जो कंजम्पटिव काइंड में हो एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्शन, और उसमें कोई प्रोडक्शन ना हो। अब क्या होता है उस तरह का, जैसे मान लो कि हम सैलरी देते हैं, पेंशन देते हैं, इंटरेस्ट, पेमेंट, सब्सिडी, डिफेंस एक्सपेंसेस, मतलब ये हम नहीं कह रहे हैं कि सैलरी नहीं देना चाहिए, सैलरी देना गलत बात है, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, सब्सिडी गलत नहीं है, पेंशन गलत नहीं है, इंटरेस्ट सब देना पड़ता है यार। सब्सिडी के बारे में जिक्र होता है, शुड सब्सिडी बी एबॉलिश्ड, क्या सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए, बहुत डिस्कशन होता है सब्सिडी के ऊपर में। सब्सिडी सब्सिडी सब्सिडी, बहुत बड़े पॉलिटिक्स होते हैं हमारे देश में सब्सिडी पे। तो कभी कभी बहुत लोग बिना सब्सिडी को समझे क्या देते हैं, इट शुड बी रिमूव्ड, या इसे लागू कर दिया जाना चाहिए। इसमें बड़ा रैशनल होने की जरूरत है सरकार को। दुनिया में हर देश में सब्सिडी का प्रावधान है, हाँ उसके मॉडल जो होता है वो चेंज करने की जरूरत है। किसे मिलना चाहिए, पहला whom it should be paid, given, and to which extent it should be given, कब तक मिलना चाहिए और किन्हें मिलना चाहिए। तो टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड होना चाहिए। सब्सिडी को मैं मानता हूँ, एज पर माय व्यूज, आई थिंक सब्सिडी इज वेरी सपोर्टिव एंड फेवरेबल टू दोज पीपल हु आर deprived, who are in need. It should not be a permanent feature. Only those people should be given who are really in need. But in our country, this is just opposite. Subsidy has become the permanent feature and it is a हॉट केक ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। राजनीतिकरण के लिए नहीं बना है। इट शुड बी गिवन टू दोज पीपल हु आर इन नीड एंड शुड नॉट बी गिवन टू दोज पीपल हु आर नॉट इन नीड। मीन्स एवरी टाइम द गवर्नमेंट शुड मॉनिटर एंड द गवर्नमेंट शुड इवेलुएट द क्राइटेरिया टू फिक्स द क्राइटेरिया, or to some extent, yeah, after some time, after transforming the standard of living or financial transformation, it should be considered कि हमें देना चाहिए कि नहीं चाहिए, but it should not be eradicated, क्योंकि हर देश में गरीब लोग, हर देश में ज़रूरतमंद लोग रहते हैं। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए है, दैट्स वाई ये एक वेलफेयर का चीज़ होता है। और गवर्नमेंट को एक तरफ से लेना है और दूसरे तरफ से देना है। तो टैक्स लगाए गवर्नमेंट, अमीरों पे खूब टैक्स लगाना चाहिए, एक रैशनल टैक्सेशन लगाना चाहिए, और गरीबों के लिए देना चाहिए। जब टैक्स होगा तो सब्सिडी भी होना चाहिए, बट इट शुड बी टारगेट ग्रुप ओरिएंटेड होना चाहिए। तो पेइंग सैलरी, पेंशंस, ये जो इन सारी चीज हैं, दीज आर केप्ट अंडर द नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब कि पेंशन देने से कोई विकास नहीं होता है, सही बात है। इंटरेस्ट हम ब्याज देते हैं, उससे भी कोई विकास नहीं होता है। सब्सिडी देने से भी कोई विकास नहीं होता है, ये अच्छी बात है, ठीक बात है।
लेकिन ये कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, या कोई भी देश सरकार वेलफेयर होता है, इसलिए उसको ये भी देखना है कि कुछ लोग को बैठा करके भी खिलाना पड़ सकता है आपको, जो काम नहीं करने के लायक है। तो सैलरी को भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है, वेतन को। दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट यूज्ड इन द इंडियन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। ये भारत में ये नहीं चलता, इंडिया में ये इसकी जरूरत नहीं है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, हमारे यहाँ बजटीय मैनेजमेंट में इस तरह का अलाउड नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्लानिंग एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो दूसरा पॉइंट है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब योजनागत खर्च और नॉन गैर योजनागत। तो दे रहा है एवरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द पब्लिक एक्सचेकर इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी में इसको रखा गया है। फर्स्ट इज द प्लान एक्सपेंडिचर, द अनदर इज नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब प्लान में कौन कौन है वही चीज़ है, लेकिन यहाँ हमारे देश में, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट का नहीं है, हमारे यहाँ प्लान और नॉन प्लान का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। All those expenditure which are not done in India in the name of planning is plan expenditure. नॉट नहीं होगा यहाँ पे, नॉट मिस प्रिंटिंग है, वो नॉट फालतू का है, देख लीजिएगा कंफ्यूजन ना हो। तो जितने भी खर्च होते हैं हमारे देश में प्लानिंग के माध्यम से, कि भाई रोड बन रहा है, बिजली बन रहा है, ब्रिज बना रहे हैं, अन्य चीज बना रहे हैं, तो उससे हम प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। Under this, the government creates asset building, infrastructure, etc. Roadways, railways, port, schools, colleges, playgrounds, stadiums. तो इन पे जो खर्च होता है, मतलब कि एसेट क्रिएशन, इट मीन्स कि फॉर द पर्पस ऑफ एसेट क्रिएशन। जब हमारे यहाँ एसेट क्रिएशन के पर्पस में हम खर्च करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्लान एक्सपेंडिचर, उसे प्लान एक्सपेंडिचर कहा जाता है। समझ गए? ठीक उसी तरह से जैसे ऊपर में हमने पढ़ा डेवलपमेंटल, हमारे देश में डेवलपमेंटल जो है वो चीज़ हमारे देश में ये क्लासिफिकेशन नहीं इस्तेमाल होता है। तो इन प्लेस ऑफ डेवलपमेंटल हमारे यहाँ प्लान एक्सपेंडिचर है। जो डेवलपमेंटल में होता है वो हमारे देश में प्लान एक्सपेंडिचर में होता है। हमारे देश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वो प्लान एक्सपेंडिचर, हम उसके लिए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शब्द का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ये क्या है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर? ऑल कंजप्टिव, नॉन प्रोडक्टिव, नॉन एसेट बिल्डिंग आर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर such as salary, pensions, interest, payment, subsidies, defense expenses,
डिफेंस पे भी जो खर्च होते हैं हमारे देश में या दुनिया के किसी भी देश में, तो डिफेंस पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज नॉट प्रोडक्टिव, इट डजंट क्रिएट एसेट्स, वो एसेट को क्रिएट नहीं करता है, वो सिर्फ कंजम्पशन यानी फॉर द मेंटेनेंस, उससे मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस करता है। तो इन्हें हम नॉन प्लान कहते हैं। ये क्या है, एसेट क्रिएशन नहीं होता है इससे। जो मेंटेनेंस है, जो सब्सिडी देना है, लोगों को हेल्प करना है, पेंशन्स देने हैं, सैलरी देने हैं, इंटरेस्ट देना है, डिफेंस एक्सपेंसेस हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस। तो ये दिस इज दी, इसे हम कंजम्पटिव और नॉन प्रोडक्टिव कहते हैं। दे आर नॉट डेडिकेटेड टू बिल्ड अप एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ एसेट बिल्डिंग्स। ये अंतर है। अब अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे, रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू तो समझ गए हम लोग प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। प्लान एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट की बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर बीइंग डेवलप्ड, रोड्स, पावर जनरेशन, bridges are constructed, ports, airports are constructed. These are the asset creation program. That is why they are planned expenditure. But on the other hand, non-planned expenditure means for the maintenance of the systems को maintain करने के लिए, they are not productive, they are not एसेट क्रिएशन प्रोग्राम्स। अब देखेंगे रेवेन्यू। व्हाट इज रेवेन्यू? व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स राजस्व। क्या होता है इसका मतलब? राजस्व होता है। रेवेन्यू मीन्स राजस्व। Every form of money generation in the nature of income, जो भी इनकम के नेचर में जो भी जनरेशन होता है इनकम, अर्निंग्स आर रेवेन्यू फ्रॉम फॉर अ फर्म और गवर्नमेंट। किसी भी फॉर्म में जो हम मनी जनरेट करते हैं, कोई फर्म करती है या सरकार करती है, दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू, which do not increase financial liability of the government। तो गौर करेंगे, ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हम जो कमाते हैं, सरकार के पास इनकम आता है, वो बनता है रेवेन्यू, उसको राजस्व कहते हैं। मोटे तौर पे मान लो कि अगर आप भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप सब में भी लोग कंपनी चलाता है या अन्य लोग चलाते हैं, तो उनको भी जो इनकम आता है सोर्सेज से, चाहे तो वो रेवेन्यू कहलाता है। जो भी इनकमिंग है वो रेवेन्यू होता है। इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। रेवेन्यू कभी सरकार का लायबिलिटी नहीं होता, ये सेट्स होता है। जितनी किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू स्ट्रांग होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन दैट विल वर्क इफेक्टिवली। इफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू इज ऑल्सो स्ट्रांग, प्रॉस्पेरस, द गवर्नमेंट विल बी वेरी कंफर्टेबल टू रन द बिजनेस ऑफ द स्टेट। हम अच्छे से काम करेंगे, चला लेंगे। तो रेवेन्यू इज नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन, बट इट इज एन एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द कंट्री, एज वेल एज द गवर्नमेंट। अब रेवेन्यू
आता कैसे है? तो देखिएगा, इसमें टैक्स इनकम है, नॉन टैक्स इनकम है, फॉरेन ग्रांट्स, ये सब है। मीन्स गवर्नमेंट अर्न्स मनी इनकम फ्रॉम बाय इम्पोजिंग टैक्सेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर इम्पोज्ड, दुनिया के किसी भी देश में लगाए जाते हैं, सिर्फ आपके देश में नहीं। सरकार टैक्स लगा करके इनकम जुटाती है। इनके नॉन टैक्स इनकम भी हैं, टैक्स के अलावे भी इनकम है, हम इसका जिक्र करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसके बाद अलॉन्ग विथ फॉरेन ग्रांट्स, कुछ विदेशों से ग्रांट्स मिलते हैं। तो ये सारे सोर्स क्या हैं? गवर्नमेंट के रेवेन्यू का काम करता है, राजस्व होता है, और इसी राजस्व से बनता है कंसोलिडेटेड फंड बनता है, जिसकी चर्चा हम शुरू में आज की है। रेवेन्यू आएगा 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 आएगा, सभी रेवेन्यू एक जगह जमा होगा, एक जगह पूरा अलग अलग क्षेत्रों से आएगा, अलग अलग डिपार्टमेंट से आएगा। इनकम टैक्स से आएगा, सर्विस टैक्स से आएगा, सेल टैक्स से आएगा, जीएसटी से आएगा, अन्य टैक्स से आएगा। उन सबको फिर मिला दिया जाता है तो बन जाता है वो कंसोलिडेटेड फंड बन जाता है। और नॉन टैक्स से भी आता है, टैक्स के अलावे भी, मतलब हर सोर्सेस से बनता है ये। नेक्स्ट है नॉन रेवेन्यू। नॉन रेवेन्यू मीन्स एवरी फॉर्म ऑफ मनी जनरेशन विच इज नॉट इनकम और अर्निंग फॉर अ फर्म ऑफ गवर्नमेंट, मनी रेज बाय बोरिंग्स इज कंसिडर्ड एज नॉन रेवेन्यू। तो देखेंगे यहाँ पे ये कमा करके नहीं, बल्कि मनी रेज्ड बाय बोरोइंग्स। जब आप बोरोइंग से लेते हैं, कर्जा लेते हैं, यानी जब आप किसी से कर्ज लेते हैं, बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, कमा करके नहीं लेते हैं, अर्निंग नहीं है आपका, दिस इज कॉल्ड नॉन रेवेन्यू। ये राजस्व है लेकिन नॉन राजस्व है, कर्ज लिया हुआ राजस्व। नेक्स्ट टर्म है रिसीट्स। Every receiving or accrual of money to a government by revenue and non-revenue sources is a receipt। अब एक टर्म ये भी समझ लीजिएगा। तो निश्चित रूप से रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू में मोटा मोटी आप संबंध समझ गए कि क्या डिफरेंस है। रेवेन्यू मीन्स होता है कि हमने कमाया, और नॉन रेवेन्यू मीन्स हमने क्या किया? उधार लिया, कर्ज लिया। अब कर्ज जो लेते हैं उसको तो रेवेन्यू कोई कहता नहीं है। मान लो कि अगर आपने या हमने किसी से कर्ज लिया तो उसको हम रेवेन्यू में तो नहीं दर्शाएंगे, वो तो नॉन रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू तो वो हुआ जिससे हम कमाए, मान लो कि हमको जो सैलरी मिला काम करने के बदले में, या हमने कोई चीज़ बेच करके या बिजनेस करके कमाया, वो रेवेन्यू होता है हमारा। हमने कर्ज लिया, इसको रेवेन्यू तो नहीं कहेंगे। हाँ जरूर हमने लिया किसी पर्पस के लिए, लेकिन वो तो हमें देना है, चुकाना भी है, तो वो नॉन रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट है, अब देखिएगा, अब रिसीट के अंदर क्या क्या आ जाता है, बड़ा माइनर चीज, माइन्यूटली हम लोग देख रहे हैं। एवरी रिसीविंग और
accrual of money to a government by revenue and non-revenue resources is a receipt. अब चाहे तो रेवेन्यू से आए, मतलब कि चाहे वो रेवेन्यू हो या नॉन रेवेन्यू हो, चाहे वो हम कमा करके लाएं या कर्ज लेकर के लाएं, इन सब से जो बनता है वो क्या कहलाता है? रिसीट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? रिसीट्स यानी प्राप्तियां कहलाता है। इसको हम कहते हैं प्राप्तियां। तो ये रेवेन्यू और रिसीट्स में फर्क है। रेवेन्यू मीन्स बाय अर्निंग इनकम और नॉन रेवेन्यू मीन्स बाय बोरोइंग। इनकम नहीं तो देखिएगा यहाँ पे जो टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स क्या हैं। टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स इसके अंदर है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट तरह के टैक्सेस सरकार के पास है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। बहुत सारे टैक्स से सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है। अब टैक्स क्या है? अबाउट द टैक्सेशन, कर एक, इसके बारे में कहा गया इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सभी को टैक्स देना है। इफ यू कंज्यूम वट एवर इन द मार्केट, वट एवर, इफ यू कंज्यूम वन बॉटल कोका कोला, पेप्सी, if you consume cigarette, if you buy biscuit or whatever you purchase from the market, you will have to pay tax. तो टैक्स सभी को देना है, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, एवरीवन हैज टू पे टैक्स। सब टैक्स के बारे में जान लीजिएगा। और इसीलिए चूंकि इस पे सभी को देना है टैक्सेशन, तो निश्चित रूप से इस टैक्सेशन से सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। दिस इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? हालांकि आगे भी हम लोग बात करेंगे आपसे इसी वीडियो में, लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो कि जिन पे वो टैक्सेशन लगाया जाता है और उसी पे वसूला जाता है, वो डायरेक्ट टैक्स है, उसी से वसूला जाता है। दिस टैक्स इज नॉट अवॉइडेड, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट टैक्स को। इट इज अनअवॉइडेबल। If this tax is imposed on some person, he or she has to pay. He cannot shift to others. She cannot shift to others. This is called direct tax. Means in the direct tax, the impact and incidence falls on both falls on the same person. टैक्स का इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों एक ही व्यक्ति पर। तो एक संक्षिप्त में कहा जाए कि इस टैक्स को हम टाल नहीं सकते, कैनॉट शिफ्ट इट टू अदर्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर में बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब मान लो कि इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स होता है,
जिसको हम निगम कर भी कह सकते हैं, आयकर निगम कर। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी। कैपिटल गेन टैक्स मीन्स if you purchase something and sell after some times, you will get some benefits. On that benefit you will have to pay tax. This tax is called CGST. Suppose you buy a flat, 2 BHK flat, 3 BHK flat, paying 50 lakh rupees, and after some time, after 10 years, 5 years, you sell it at 1.25 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ पे बेचते हैं, तो आपको नेट उस पर प्रॉफिट कितना आया? लगभग 1.25 लाख का, 75 लाख का आपको प्रॉफिट आया। इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। मतलब कि आपको ये बेनिफिट हो रहा है, इससे 75 लाख का बेनिफिट हुआ है, तो इस पर आपको कैपिटल गेन हुआ है, इसलिए आपको CGT देना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स। तो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स। अब ये क्या है, गौर करेंगे। ये दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ रिच पीपल। जो सोसाइटी के अमीर लोग होते हैं उन पे कंजम्पशन पे लगाया जाता है। इस टैक्स के बारे में कहा जाता है कि इन्फ्लेशन के दौर में टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय इम्पोजिंग दिस टैक्स, लगा करके इन्फ्लेशन को काबू में रखा जा सकता है। इसलिए इन्फ्लेशन के पीरियड में जब दाम कीमतें बहुत बड़ी चढ़ी हो, ऐसे में ये टैक्स लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उसके बाद और भी टैक्स है, जैसे डेथ ड्यूटी आता है, मृत्यु कर कहते हैं। मृत्यु कर में आपका एक हो गया इनहेरिटेंस टैक्स, उत्तराधिकार कर होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट टैक्स हैं। जनरली दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द रिच पीपल। दिस टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन इट्स नेचर and only the rich people will pay it, because this direct tax is imposed on the particularly the rich people। वो उन पे देता है, क्योंकि ये कर योग्यता के आधार पर लिया जाता है। जिसके पास कर की योग्यता है वो इस टैक्स को भुगतान करता है। अब गौर करेंगे नेक्स्ट। अब डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट टैक्स भी एक सोर्स है, मतलब टैक्स दोनों टैक्स है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सभी आदमी को टैक्स देना पड़ता है, वो डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये कन्फ्यूजन में ना रहे, दिमाग में ना लगाएं कि मैंने बताया कि टैक्स सभी को देना पड़ता है तो इसका मतलब कि सभी को डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सभी को देना। यानी जो हमने कहा कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, this is related to the indirect tax, not the direct tax. Direct tax सभी को नहीं देना पड़ता। Direct tax is paid by only the rich people of the society. It is imposed on the rich. It is based on ability to pay. If you have ability to pay, if your income is greater, higher, in that case, this tax will be imposed on you. But indirect tax is taken by each and every people, सभी से लिया जाए, सबको से इस पे लगाया जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी गुड्स पे वो टैक्स जो होता है एडेड होता है, जिसको हम GST का या वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। तो GST में जो भी गुड्स है वो, अगर मान लो कि आप कुछ भी लेते हैं, एक बिस्किट भी लेते हैं, एक पेन लेते हैं, अगर आप एक कॉपी लेते हैं, बुक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उस पर जो टैक्स होता है वो GST वो ऑलरेडी लगा होता है। दैट्स वाई हम उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये कंपलसरी पेमेंट इज एसोसिएटेड विद द इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट द डायरेक्ट टैक्स। क्लियर हो गया? डायरेक्ट टैक्स सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव है, यानी वो जिनकी योग्यता है
it is received from the, it is imposed only to the segment who are rich, who are able, who have ability to pay, जो दे सकते हैं, जिनके पास क्षमता है वो दे सकते हैं, तो उन पे ये टैक्स लगाया जाता है. ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपकी क्षमता हो या ना हो, या you have you ability or not, it doesn't matter, you will have to pay because you are consuming the goods and services in a country, whether you are nationals or you are foreigners, but you are enjoying and availing the goods and services of this country, you will have to pay tax, and that very tax is called indirect tax, and this tax is compulsorily paid by each and every people. Regarding the indirect tax, we should remember the pet theory given by Ursula Hicks. She says that, उसने कही कि from bomb to tomb each and everybody has to pay tax. From bomb to tomb का मतलब होता है कि माँ के कोख से लेकर के और कब्र तक सभी को टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. इट मीन्स कि नोबडी कैन एस्केप टैक्सेशन. आप टैक्सेशन से वंचित नहीं हो सकते, आपको टैक्स देना ही होगा, क्योंकि इस दुनिया में उन्होंने बताया कि दो चीज़ सत्य है, एक टैक्सेशन और दूसरा मृत्यु. जन्म हो ना हो, लेकिन अगर जन्म हो तो मृत्यु जरूर होता है, और कभी कभी अजन्मा बच्चा भी हो जाता है. तो माँ के कोख से लेकर के कब्र तक के आपको टैक्स का भुगतान करना है. इट डजेंट मैटर कि आप कौन हैं, क्या हैं, आपकी एबिलिटी है ना है, बट यू विल हैव टू. जब आप किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं, चाहे भले वो आप किसी माचिस का ही कंजम्पशन क्यों ना करते हैं, उस पर भी आपको टैक्स के रूप में भुगतान करना पड़ता है. तो ये दो जो मेजर सोर्स है, ये गवर्नमेंट का मेजर सोर्स है, जिसको टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहा जाता है. ठीक है, मतलब कि टैक्स से आया हुआ, यानी ये दो सोर्स हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है. फ्रॉम दीज टू सोर्सेज वी गेट रेवेन्यू, इज कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. रिसीट्स का मतलब प्राप्ति. एम आई राइट? अब देखिएगा, दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. ये क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट मीन्स होता है गैर कर. इनकम तो आया लेकिन कर से नहीं आया, कर के बाहर का चीज है, उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है. दिस इंक्लूड ऑल मनी अर्नड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द टैक्स सोर्सेज. मतलब जो टैक्स के अलावे जो रेवेन्यू आती है हमारे, वो नॉन टैक्स भी है, जो कर के अलावे है. अब वो क्या क्या है जरा गौर करेंगे. और यहाँ से सवाल ज़रूर करता है कि अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि डायरेक्ट टैक्स से या इनकम टैक्स से प्राप्त किया गया जो रेवेन्यू होता है सरकार को, वो सरकार किस की आय के क्या, उसको क्या कहते हैं, टैक्स रेवेन्यू कहते हैं या नॉन टैक्स रेवेन्यू? तो निश्चित रूप से चूंकि वो टैक्स है, सिंपली कोई भी टैक्स है वो टैक्स रेवेन्यू ही कहलाएगा, और जो टैक्स नहीं है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाएगा. वो सिंपल सा चीज़ इसको जानना है. अब देखिएगा इसमें क्या है. इन इंडिया देयर आर प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स. जो लाभ होता है, लाभांश गवर्नमेंट का, विच गवर्नमेंट गेट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs. मीन्स बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स हैं जो कि गवर्नमेंट के अंदर में होता है. जो भी, चाहे वो बैंक हो या फिर इंडस्ट्रीज हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं.
तो इनसे इनका जो भी मुनाफा होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है उससे। चाहे वो एनटीपीसी हो, नेशनल थर्मल पावर हो, तो गवर्नमेंट बिजली बनाती है। अगर सपोज करो 1 लाख करोड़ की बिजली सरकार ने बनाई, बेची, कंजम्पशन करी, और उससे 1.5 करोड़ का फ़ायदा होता है सब ले दे करके, तो लगभग मैंने 1.5 करोड़ का नेट इनकम होता है करोड़ के खर्च करने पर। तो 100 करोड़ का बिजली सरकार उत्पादन करती है, खर्च करती है, और उससे वो 150 करोड़ कमाती है, तो 50 करोड़ का नेट उससे फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा क्या बनता है? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, डिविडेंड और प्रॉफिट बनाता है, जो कि गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू में वो करता है, ऐड करता है। तो गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रेवेन्यू बनता किससे है? इनसे बनता है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट आउट ऑफ ऑल लोन्स फॉरवर्डेड बाय इट, बी इट इनसाइड इंटरनल लेंडिंग और आउटसाइड द एक्सटर्नल लेंडिंग। में इसकी गवर्नमेंट भी बहुत अपने देश में बहुत सारे चीज़ों को लोन देती है, और बाहरी लोन भी देती है, बाहर का लोन भी देती है। तो उन लोन से, उन कर्ज से गवर्नमेंट गेन्स सम इंटरेस्ट। सरकार को क्या होता है? उससे लाभ होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज आता है। तो उस ब्याज से भी गवर्नमेंट का क्या बनता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इसको भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में नहीं जोड़ा जाता है, उसको भी किस में जोड़ा जाता है? टैक्स रेवेन्यू में जोड़ा जाता है। तो टैक्स रेवेन्यू ऐसे बनता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और टैक्स रेवेन्यू तो मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट है फिस्कल सर्विसेज। अब देखिए फिस्कल सर्विसेज क्या है। इट ऑल्सो जनरेट्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब यहाँ से भी सरकार को इनकम होता है, जैसे करेंसी प्रिंटिंग, स्टाम्प प्रिंटिंग, कॉइनेज, मेडल मिंटिंग, कॉइनेज, इन सब में, स्टाम्प प्रिंटिंग में भी, इनसे भी गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बनता है सरकार का नॉन टैक्स रेवेन्यू बनता है। एम आई राइट? नेक्स्ट है जनरल सर्विसेज, कुछ सेवाएं। ऑल्सो अर्न मनी फॉर द गवर्नमेंट। अब कुछ सेवाएं भी हैं जो कि सरकार को उससे मनी जनरेट होता है, सच एज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिटी सर्विसेज। तो गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स से भी जनरल आम सेवा, दीज आर दी पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इलेक्ट्रिक जो होता है हमारा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक सेवा है, उससे भी गवर्नमेंट को फ़ायदे हैं। इरिगेशन से, बैंकिंग सेक्टर से भी मुनाफा होता है, और इंश्योरेंस सेक्टर, बीमा, कम्युनिटी सर्विसेज, ये सारे, इन सब से भी गवर्नमेंट को क्या आता है? रेवेन्यू आता है। दैट इज़ कॉल्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि टैक्स से आया और टैक्स से जो नहीं आया वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। कुछ और भी सोर्सेज हैं, फ़ी, पेनल्टीज एंड फाइन्स। अब फ़ी, मान लो कि आप किसी फ़ी, जैसे किसी पर्टिकुलर सेवा को अगर अवेल कर रहे हैं तो यू विल हैव टू पे फ़ी और कैपिटेशन फ़ी। कॉलेज में, स्कूल में, या जो भी है उसमें आपको फ़ी देना पड़ता है। तो वो फ़ी कहाँ जाता है? वो फ़ी से बनता है सरकार का रेवेन्यू तैयार होता है। मतलब जो भी सेवा के लिए अगर आप जो पे करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ़ी। पेनल्टी, अब मान लो कि अगर बिना टिकट के ट्रेन से आप जा रहे हैं, विदाउट टिकट जिसको कहते हैं, सिंपली समझने के लिए, यू विल हैव टू, तो फिर टिकट चेकिंग में पकड़े गए तो आप पर पेनल्टी लगता है। अब वो पेनल्टी का पैसा जो होता है वो टैक्स नहीं है एक प्रकार का। कभी कभी बहुत लोग समझ लेते हैं टैक्स लगा दिया सरकार ने,
इज नॉट टैक्स, ये पेनल्टी है। तो पेनल्टी आप पर लगता है और आपका फाइन्स भी हो सकते हैं। इन सब से, पेनल्टी, फाइन से और फी से जो बनता है वो क्या है? वो रेवेन्यू कैसा रेवेन्यू है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है। मतलब नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी चीज़ देख लीजिए। और टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है जो कर से आता है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस। वी विल डिस्कस इन वेरी एक्सटेंसिव मैनर व्हाइल डिस्कसिंग द टैक्सेशन में, और बेहतर तरीके से हम लोग इसी चैप्टर आगे हम लोग टैक्स में जब आएंगे तो बहुत बेहतर तरीके से बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़े से जान लेना है कि नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। तो ये दोनों से बनता है टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, नॉन टैक्स से और टैक्स से। क्लियर हो गया? एम आई राइट? अब देखेंगे हम लोग रेवेन्यू बजट क्या होता है। व्हाट इज रेवेन्यू बजट? The part of the budget which deals with the income and expenditure by the government. अब क्या है कि बजट जब भी कभी बनता है, दिमाग में रखने आए इस बात को समझना है कि आप बजट कभी भी बनाएंगे तो उस बजट में दो चीज़ हमेशा रहता है। बजट इज नॉट बेस्ड ऑन ओनली द इनकम और ओनली द एक्सपेंडिचर। ऐसे नहीं बजट बनता है। बजट बोथ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों की चर्चा होती है। आय की भी चर्चा होती है, व्यय की भी चर्चा होती है। तो द पार्ट ऑफ द बजट विच डील्स विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यानी बजट में जब हम रेवेन्यू बजट में अब रेवेन्यू आया और गया इनकी जिक्र होता है, इनकी चर्चा होता है। अब आप जान लें कि रेवेन्यू रिसीट के बारे में आपने समझ लिया। रेवेन्यू रिसीट के अंदर में क्या है? तो टैक्सेशन है। टैक्सेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। फिर हमने तो 2-4 पॉइंट देखा कि गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो है, फ़ी है, फाइन्स है, ये सब है। तो मेरा यहाँ पे ये बताना है कि इनसे सिर्फ इनकम ही नहीं आया, बल्कि इन पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन पे खर्च होता है, हमारा आउटले एक्सपेंडिचर होता है। इतना इनकम लाने के लिए हमें उतना खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट को। अब मान लो कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए सरकार को खर्च पड़ता है, लोग की सैलरी देने के लिए खर्च पड़ेगा, गाड़ी मेंटेनेंस करने के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, स्टाफ्स पे खर्च है, ऑफिस पे खर्च है। देयर आर डिफरेंट एंड सेवरल एक्सपेंसेस विच आर स्पेंड ऑन द डिपार्टमेंट्स, either the taxation departments और नॉन टैक्स डिपार्टमेंट्स। और दूसरी तरफ उनका काम है कि वो रेवेन्यू को वो रेज करते हैं। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होता है बजट में हमेशा, सिर्फ आउटगोइंग नहीं होता या सिर्फ इनकमिंग नहीं होता। तो द पार्ट ऑफ द बजट विच डील्स विद द इनकम एंड, इसको दिखाया जाता है रेवेन्यू बजट में कि कितना आया कितना गया। This present the annual financial statement of the total revenue receipt and the total revenue expenditure। अब इसमें ये दिखाया जाता है कि टोटल खर्च कितना हुआ हमारा इस रेवेन्यू को जनरेट करने में। मान लो कि 100 करोड़ हमने रेवेन्यू जनरेट किया, रिसीट किया, तो 100 करोड़ लाने में, रुपया लाने में हमें कितना पे करना पड़ा, ये दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू बजट। आप समझ गए? टू जनरेट और टू रेज रेवेन्यू फ्रॉम द इकोनॉमी, द अमाउंट विच इज स्पेंट, स्पेंड किया जाता है, एक्सपेंडिचर खर्च करना पड़ता है। तो कितना खर्चा हुआ और कितना उससे इनकम हुआ ये बताया जाता है रेवेन्यू बजट में। और रेवेन्यू बजट में आते कौन कौन है? तो टैक्स एंड नॉन टैक्स ये होता है। टैक्स और नॉन टैक्स, इसकी भी चर्चा हमने कर लिया।
टैक्स क्या है इसकी भी चर्चा कर लिया, नॉन टैक्स की भी चर्चा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के। तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट्स। अब रेवेन्यू डेफिसिट्स क्या होता है? बहुत सिंपल बात है समझने के लिए, कभी कभी बहुत लोग कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसको समझ नहीं पाते हैं, फिर भी उनके लिए बहुत लगता है कॉम्प्लिकेशन है, पता नहीं बहुत टफ चीज़ होता है। ऐसा नहीं होता है, जनरली एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है कि डेफिसिट किसी भी सेक्टर का, एक मिनट के लिए आप रेवेन्यू को हटा दो, अब अपने खर्च और इनकम के बारे में बता दो। तो सपोज मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, दुकान चला रहे हो, तो कभी कभी हो सकता है कि आपके दुकान में घाटा भी हो सकता है। बहुत लोग का कोविड में इस तरह का एक्सपीरियंस दिखाई दिया कि बहुत सारे सेक्टर में बहुत घाटा हुआ, उस सेक्टर में तो अलग बात है, लेकिन बाकी के सेक्टर में बहुत नुकसान हुआ। तो सीधी सी बात है, डेफिसिट दिखाने के लिए क्या होता है कि ये देखना है कि, या सरप्लस दिखाने के लिए डिफरेंस, इनकमिंग आउटगोइंग का जो डिफरेंस होता है, जो रिसीट्स हैं और जो एक्सपेंडिचर हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है। क्लियर है? इफ द रिसीट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तो कभी कभी आप रिसीट ज़्यादा ले लेते हैं तो लाभ ज़्यादा होगा आपको, तो ये सरप्लस हो सकता है। और इफ़ द एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रिसीट, अगर आपका खर्च रिसीट से ज़्यादा है तो डेफिसिट हो सकता है। तो बस यही चीज़ जानना है कि रेवेन्यू के बारे में अगर आप समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, रेवेन्यू के बारे में कि रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, रेवेन्यू आया कैसे है, तो इन रेवेन्यू से रिलेटेड हर पॉइंट को दिमाग में रख लेना है। अब मान लो कि अगर इफ द बैलेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीट, अगर जितने भी हमारे रिसीट्स हैं, चाहे वो टैक्स से हैं, नॉन टैक्स से हैं, डायरेक्ट टैक्स से, इनडायरेक्ट, सब मिला करके रेवेन्यू बनता है। अगर रेवेन्यू रिसीट एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्न इनटू टू बी नेगेटिव, मतलब कि अगर हमारा जो रिसीट्स हैं वो कम हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो ऐसे में हम रेवेन्यू डेफिसिट मान लेते हैं। यानी मोटे तौर पे यदि हम कहें कि हमारा खर्च है, हमें आया 100 रुपया और खर्चा कितना हुआ, 120 रुपया हुआ, 110 रुपया हुआ, तो निश्चित रूप से हमारा 10 या 20 रुपया हमारा डेफिसिट हो गया। अब इन डेफिसिट को हमारे देश में या बजट के माध्यम में इन घाटे को, यानी जो 20 रुपया का घाटा हुआ या 10 रुपया का घाटा हुआ, 100 हमने 120 रुपया खर्च कर दिया और हमारी इनकम कितना है, 100 रुपया है, तो मैंने 20 रुपया ज़्यादा खर्च कर दिया, ये घाटा लग गया। या ऐसे भी मान लो कि हमने 100 रुपया खर्च कर दिया और हमारे पास इनकम आया 80 रुपया, तो 20 रुपया का घाटा हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत क्लियर है कि अगर मान लो कि सपोज कि मैंने 100 रुपया खर्च कर दिया बजट में और रेवेन्यू के मद में, एंड आई हैव रिसीव्ड ओनली 80 रुपीज़ बाय एक्सपेंडिंग 100 रुपीज़, इट मीन्स दिस गैप ऑफ 20 रुपीज़। ये एक डेफिसिट है। और कौन सा डेफिसिट है? ये रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। इट इज रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? अब ये रेवेन्यू डेफिसिट जब 20 रुपीज़ हुआ, ये जीडीपी का कितना परसेंट है? बजट का नहीं, बजट का तो 20% हो गया। ओवरऑल बजट का अगर मान लो कि 100 और 80 का जो गैप है वो 20% दिखता है, लेकिन अब ये 20 रुपया जो होता है, 100 में 20 रुपीज़ होता है, वो जीडीपी का कितना परसेंट है? अब सपोज मान लो कि हमारा जीडीपी अगर हमारा जीडीपी 200 रुपये का है, या हमारा जीडीपी 1000 रुपये का है, तो 1000 का 20 रुपया कितना परसेंट होगा? वो होता है जीडीपी का। तो सिंपली इसको देख लेंगे, फॉर्मूला है, या 200 का ही मान लो, तो 200 का 10% हुआ और 400 का 5% हुआ जीडीपी, 800 का ऐसे करके, मतलब वो जीडीपी के रेशियो में दिखाया जाता है कि कितना घाटा हुआ। तो ये डेफिसिट, द फिस्कल टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड सिंस द
97-98 में इस तरह के भारत में ये जो टर्मिनोलॉजी, फिजिकल टर्मिनोलॉजी हमारे देश में यूज़ होना शुरू हुआ। अब देखेंगे रेवेन्यू रिसीट, यानी रेवेन्यू रिसीट 100 रुपया है, खर्चा है 110 रुपया, रेवेन्यू रिसीट कितना हो गया 10 का, मतलब 10 रुपया हो गया, ये 10 हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब देखेंगे अब रेवेन्यू सरप्लस क्या है। सीधी सी बात है, डेफिसिट के बाद सरप्लस होता है, फायदा और घाटा, सिंपल। तो देखेंगे फिजिकल डेफिसिट व्हेन बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल रिसीट्स, जब हमारा जो टोटल रिसीट, जैसे रेवेन्यू, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट भी एक होता है। तो मान लो कि हमारे देश का टोटल इनकम, चाहे वो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिला करके हो, अगर जितने भी सरकार के इनकम है बजट में, वो मान लो कि 100 करोड़ का है और खर्च हुआ 115 करोड़ का, तो ये भी एक घाटे की सिचुएशन है। इसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। सॉरी, पहले हम रेवेन्यू सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, ये आगे फिजिकल डेफिसिट पे बाद में बात करते हैं। पहले ये एक छूट गया हम लोग का, तो ध्यान देंगे। अब रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है, तो बस सिंपल सा बात है कि जब हमारे पॉजिटिव हो जाए, मतलब कि हमारी जो रेवेन्यू सरप्लस है वो पॉजिटिव हो जाए। सिंपली है कि द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, देयर विल बी समथिंग आइदर surplus or deficit. If the revenue receipt is greater than expenditure, revenue receipt is greater than expenditure, this is the surplus. Revenue receipt is greater than expenditure, this is the situation of surplus revenue. It means कि we have additional, हमारे पास surplus है, हमारे पास शेष भाग है, बचा हुआ है। Just opposite on the other hand, when your expenditure is greater than the receipt, this very situation is deficit. और इसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट रेवेन्यू कहेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट कहेंगे। और अगर हमारे पास ज़्यादा इनकम है तो इसे हम सरप्लस कहते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि इफ़ द बैलेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीट एंड टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्न्स टू बी पॉजिटिव, नोन एज रेवेन्यू सरप्लस। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। रेवेन्यू डेफिसिट अच्छी बात है बिल्कुल नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट कोई भी देश नहीं चाहता है, रेवेन्यू डेफिसिट ना हो। कभी कभी टाइम टू टाइम हमें इस तरह के स्टेप लेने भी पड़ते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट इंटेंशनल कराना पड़ता है, लेकिन यूजुअली ये ठीक नहीं है देश की इकोनॉमी के लिए। तो कोई भी देश चाहता है कि उसका रेवेन्यू सरप्लस ही हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव में जाना नहीं चाहता। अब हम यहाँ पे चलेंगे फिस्कल डेफिसिट्स। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं, राजकोषीय। मैं आपको हिंदी में भी वीडियो में आपको डील करूँगा बेहतर तरीके से। तो फिस्कल डेफिसिट्स क्या होता है, व्हेन बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट्स टोटल रिसीट, अब सरकार के जो भी रिसीट्स हैं, अब मान लो कि सरकार के जितने भी सारे रिसीट्स हैं, चाहे वो रेवेन्यू है या कैपिटल से है, ऐसे में गवर्नमेंट को 100 करोड़ का रिसीट होता है और सरकार 120 करोड़ खर्च कर देती है। फिर एक बार घाटा लग गया, फिस्कल डेफिसिट। एक बार फिर घाटा लग गया फिस्कल डेफिसिट का, मतलब कि इनकम कम और खर्च ज़्यादा, तो ये नेगेटिव हो गया और दिस वेरी सिचुएशन इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या है, जिसको राजकोषीय नीति क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है, जरा गौर कर लें। अब द सिचुएशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स दैट, अब इस फिस्कल डेफिसिट का मतलब यही होता है, यही इंडिकेट करता है, यही सिम्टम होता है कि दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स। सरकार अपने साधन से अधिक खर्च कर रही है, सरकार ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार है। am I right? अधिक खर्च करने के लिए तैयार है।
To be more simple, we say that government is spending more than its income. और एक सिंपल लाइन में कहेंगे कि when the government in a situation to invest, या when the government spend more and more than income, government spending is greater than its income, this very situation is called fiscal deficit. ऐसे में पूरे देश के जो फिस्कल डेफिसिट यानी हमारे देश का जो घाटा जिसको हम राजकोषीय घाटा होता है वो राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो अब देखेंगे कि फिस्कल डेफिसिट के बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम लोग। फिस्कल डेफिसिट मे बी शोन इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म in the total currency value of deficit or in percentage form of GDP to the of the particular year। अब गौर करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट में हम क्या दिखते हैं क्वांटिटेटिव फॉर्म इन द टोटल करेंसी वैल्यू ऑफ डेफिसिट। अब टोटल करेंसी वैल्यू क्या है, ये कितना मात्रा में हुआ और वो जीडीपी का कितना परसेंट है। अब मान लो कि अगर हमने 100 करोड़ रुपया इनकम कमाया, देश को रेवेन्यू 100 करोड़ हुआ और सरकार ने 115 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तो 100 का 115 करोड़ मतलब कि बहुत परसेंट हो गया। लेकिन ये जीडीपी का कितना परसेंट हो सकता है, तो जीडीपी का अगर हमारे जीडीपी का कितना ग्रोथ रेट है, हमारे टोटल देश का जीडीपी कितना, जीडीपी अलग होता है, डेफिसिट से अलग होता है, सरकार का रेवेन्यू अलग होता है। अब हमारे देश की सरकार ने कमाया 500 करोड़, हमारा बजट कितना का है 100 करोड़ का, और हमने 115 करोड़ खर्च कर दिया। अब हमने 15 करोड़ ज़्यादा खर्च कर दिया, यानी देश के जीडीपी जो 500 करोड़ है उस 500 करोड़ का 15 करोड़ कितना परसेंट हुआ, ये हमें ये देखना है। तो लगभग होगा तो 3 यानी लगभग 15 करोड़ है तो 500 का लगभग 3% होगा जीडीपी का, तो लगभग जीडीपी का 3% हमारा घाटा दिखता है। मतलब टोटल हमने 15 करोड़ ज़्यादा किया पर जीडीपी का वह मात्र कितना है 3% है। तो इतना घाटा हमारे जीडीपी के कंटेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। इन जनरल द परसेंटेज फॉर्म इज यूज टू डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टडी, और ये यही चीज़ अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में या विश्लेषण में दिखाई देता है कि 15 करोड़ तो 15% हो गया, 15 करोड़ टोटल इनकम और इसका डिफरेंस नहीं, बल्कि जीडीपी अगर 500 करोड़ का है तो उसमें 15 कितना लगभग 3% के करीब क्या दिखता है, हमारा जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा फिस्कल डेफिसिट दिखता है। नाउ सी द प्राइमरी डेफिसिट। अब ये क्या है प्राइमरी डेफिसिट, तो इसमें है द फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट लायबिलिटी फॉर ईयर इज द प्राइमरी डेफिसिट। इसमें कहा जाता है कि इंटरेस्ट लायबिलिटी भी जुड़ा रहता है। ये टर्म हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है अभी बजट में वो 97 से 98 में शुरू हुआ। इट शो द फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर इन विच द इकोनॉमी हैड टू बी फुलफिल एनी इंटरेस्ट or different loans and liabilities which it is belong to, so both in qualitative and percentage of the GDP form। Simply इसको जानना है कि फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट प्राथमिक घाटा का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार को बहुत पेमेंट करना पड़ता है जो घाटा में, तो उस घाटे में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को हटा दीजिएगा तो सरकार की प्राइमरी डेफिसिट होता है। बाद में वो इंटरेस्ट भी अगर तो ऐड रहा तो फिस्कल डेफिसिट रहा, अगर उसको माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट को अगर फिस्कल डेफिसिट से माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है प्राइमरी डेफिसिट, यानी दिस इज कॉल्ड प्राथमिक घाटे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे
अब है बजट एंड डेफिसिट एंड सरप्लस बजट। अब ये क्या है? तो व्हेन द बजटरी प्रपोजल ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ईयर प्रपोज हायर एक्सपेंडिचर देन द रिसीट इज नोन एज डेफिसिट बजट। ठीक है, बहुत क्लियर है कि कोई भी बजटरी प्रपोजल देश का बनता है और उस बजटरी प्रपोजल्स में गवर्नमेंट का जो पर्टिकुलर ईयर में वो प्रपोज हायर एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ज़्यादा दिखाती है और रिसीट कम होता है। खर्च ज़्यादा और रिसीट कम होता है बजट में जब सरकार दिखाती है, तो इसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं। निश्चित रूप से बड़ा सिंपल है चीज़। खर्च ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया तो घाटे का बजट हो गया। और ठीक इसका जस्ट अपोजिट है कि यदि हमारे खर्च कम गया और इनकम ज़्यादा हो गया तो फायदे का बजट होता है। घाटे का बजट, फायदे का बजट में ये फर्क होता है। Am I right? अब देखेंगे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, चाहे वो देश अमीर हो गरीब हो कोई भी देश हो, सामान्य तौर पे गवर्नमेंट जो होता है वो डू नॉट प्रेजेंट सरप्लस बजट और एज इट सिंबलाइजेस गवर्नमेंट्स लोअर कंसर्न्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। यदि गवर्नमेंट घाटे का बजट पेश नहीं करती है, सरप्लस बजट पेश करती है, इट मीन्स ये होता है कि ऐसा मानो प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट के पास गरीबों के विकास के लिए चिंता बिल्कुल नहीं है, गरीबों के लिए चिंता है नहीं। तो इसलिए सरकार दुनिया में कहीं भी घाटे का ही बजट पेश करती है, फायदे का बजट पेश नहीं करती है। हाँ, कभी कभी करना पड़ता है जब देश के अंदर कुछ मॉनेटरी सिचुएशन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते हैं, ऐसे में सरकार को करना पड़ता है। अब मान लो कि देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने घाटे के बजट को कम करती है। लेकिन रिसेशन के फेज में गवर्नमेंट घाटे के बजट को ज़्यादा करती है। तो इस तरह का कुछ चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से कोई भी दुनिया का देश चाहता है कि वो डेफिसिट बजट ही पेश करे, वो सरप्लस बजट पेश करना ठीक नहीं होता है। सरप्लस बजट का मतलब होता है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो एनी प्रोग्राम्स, they are not dedicated to the grievances of the people, they have no concern about the people, in that case the government, इसका मतलब यही होता है। इसलिए दुनिया के पूरी दुनिया में जो भी गवर्नमेंट है वो लगभग घाटे का ही बजट पेश करना पसंद करती है और इसको कहते हैं हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग।